Hello everyone, myself Nusra Khan, convener of Law Issues. Law Issues is an organizing committee founded by Mr. Vivek Dikshit, which provides the knowledge about debates, moot court competitions. It focused on promoting legal awareness through webinars, which is beneficial for all the law students. Lawlicious has hosted over 30 plus webinars and debate competitions. Now, I would like to introduce our keynote speaker, Mr. Ishant Tripathi, sir. He is serving as an assistant professor at City Law College, Jankipuram, Lucknow, and working as faculty of law with ICS Lucknow. Sir has done his BA LLB from Ram Manohar Lohia National Law College and LLM from Amity University. He also invited by news channels as constitutional expert and IR expert. Over to you, sir. First of all, to everyone, all my younger brothers and sisters, all my students, I wish you all a very happy Republic Day. And today we have completed the 75th year of our Constitution. The day and the date on which the Constitution of India, which had the journey of 2 years, 11 months, 18 days, and was implemented, executed on 26th of January 1950. तो आप सबसे पहले तो आज आपको भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ क्रियान्वित होने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. And Yusra and Vivek, thanks a lot for inviting me for some brainstorming and interaction with young minds, and also for giving such a wonderful introduction. So I'm highly obliged. So today I've been invited to share something on the 75 years of India's Constitution, its achievements and challenges. तो सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को यहां से बात शुरू करूंगा कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, पत्थर की मूर्तों को समझा है तो खुदा है, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है. क्योंकि आज हम जिस संविधान की बात करने वाले हैं, भारत का वो संविधान एक महज सिर्फ एक अभिलेख नहीं है. The Constitution of India is not just a mere document. In true sense, it is the vehicle of life. It is the most unique document which corresponds, which evolves over a period of time according to the needs and aspirations of the society. भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो अपने समाज की जन आकांक्षाओं के अनुसार अपने आप को स्वरूप में परिवर्तित करता रहता है, ढालता रहता है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में एक लंबा वक्त लगा, जिसमें कई सारी समितियों ने अपना योगदान दिया. पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जिस भारतीय ने भारतीयों के लिए एक अलग संविधान की मांग रखी, वो थे श्री एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि एक प्रख्यात क्रांतिकारी विचारक थे. He was a communist revolutionary and a barrister who demanded a separate constitution for Indians in 1934. अब आप देखिए, हमें और आपको लगता है कि बस 2 साल इसमें वक्त लग गया, पर जबकि 1934 में पहले भारतीय बनते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, और फिर एक लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट हो जाता है, हम अपने विषय तक सीमित रहेंगे. पर आप देखिए कि जिन परिस्थितियों में, जिस स्थिति में भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है, उस समय के हालात कितने नाजुक हैं. At the time when India's constitution is being made, is being developed, चारों तरफ का तो गावारत, खून खराबा, गजनी का माहौल है. दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को, और महज 8 महीने के भीतर ही भारत का विभाजन हो जाता है. और ये विभाजन सिर्फ और सिर्फ सरहदों का विभाजन नहीं था. It was not only the division of territories. In true sense, it was a division of hearts. क्योंकि आप देखिए तो right from Indus Valley civilization till 1857, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के 1857 तक जब आप देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी साहब कॉमन लगेगी कि आपको कोई भी, चाहे आप मिडिवल आ जाइए, आप इंडस वैली को हटा सकते हैं, आप मिडिवल इंडिया की पीरियड में आए, आप मॉडर्न अर्ली मॉडर्न इंडिया की पीरियड में आए, आपको एक रायट,
एक दंगा, एक फसाद नहीं मिलेगा हिंदू और मुसलमानों के बीच। और हमारे देश का जो विभाजन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, धार्मिक बहुलता के आधार पर, कि एक हिस्सा जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो हिंदुस्तान, एक हिस्सा जहां पर एक दूसरी कम्युनिटी मेजॉरिटी पर है वो पाकिस्तान। तो इस तरीके से मुल्क का बंटवारा हुआ। और ऐसे समय में एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो अपने साथ इतने सारे लोगों की जन आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। और उस वक्त के तमाम वेस्टर्न नेशंस ने, चाहे वो यूएसए रहा हो, चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, उन्होंने कहा we are extremely confused and shocked that how this idea of India will survive, कि किस तरीके से ये इंडिया जो बन रहा है, इसका जो निर्माण हो रहा है, ये कैसे अपने अस्तित्व में रहेगा। पर आज हमारी स्वतंत्रता को 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और संविधान लागू हुए आज 75 वर्ष हो चुके हैं। ये भारत का ही संविधान है जिसने न सिर्फ नागरिक, जबकि अपने मौलिक अधिकारों के माध्यम से, जो कि संविधान के भाग 3 में निहित हैं, अनुच्छेद 12 से 35, उसमें चाहे आप नागरिक हो, चाहे गैर नागरिक हो, चाहे शरणार्थी हो, सबको जीवन का मौलिक अधिकार, अपने धर्म की रक्षा का अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार, सबको एक साथ प्रदान किया। ये भारत का ही संविधान है जिसने ये इजाजत दी, अनुमति दी कि आप अपने अनुसार आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और यह भी कहा कि अगर आपके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा हो, सरकार आपकी बात ना मान रही हो, शासन से आप त्रस्त हो चुके हो, तो आप सीधा देश की सर्वोच्च अदालत पर जा सकते हैं। तो ये है ये भारत का संविधान जिसने कभी भी किसी के साथ ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना संप्रदाय के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव किया। नो डिस्क्रिमिनेशन was never done. And the Constitution of India continuously, in its 75 years of journey, it has evolved. And that is why there is always a debate which is related to the nature of Indian Constitution, that what can be the exact nature, कि भारत के संविधान की आखिर प्रकृति क्या हो सकती है, जो कि मूल रूप से बिल्कुल ये संघवादी संविधान है, इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसमें कुछ अंग हमें अर्ध संघात्मक के भी, एकात्मक संविधान के भी लगते हैं। बट इट इज अ मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ बोथ। और आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा दैट the Constitution of India can never be categorized into any one form. It is an extremely unique document which evolves, corresponds according to the needs and aspirations, as I just mentioned. Now, coming to the achievements. आप देखिए 1950 में भारत का संविधान लागू होता है और पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन किया जाता है, जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इटसेल्फ। इस पर कई लोगों ने बड़ा सवाल किया। एक यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं और लोक प्रशासन के जनक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडर वुड्रो विल्सन, उनका कहना था कि जब भी किसी नए संविधान का निर्माण होता है वह मूल रूप से 10 वर्ष तो अपने मूल प्रवृत्ति में रहता ही है। That when a constitution is made, it remains in its original form for at least 10 years, which means that there are no amendments in the initial 10 years. But our constitution was amended in the very first year, जिसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और ये प्रयास किया गया कि जितने खेतिहर मजदूर हैं या वो लोग हैं जिनका अभी तक शोषण होता हुआ आया है, उन सबको हम बराबरी का हक दे सकें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे संविधान के शुरुआती वर्षों में रही। जब आजादी मिली तो उस वक्त हम दुनिया के सबसे बहुत खराब स्थिति में रहने वाले, और जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो वेस्ट की तुलना में नेगेटिव पर था। हमारे पास खाने का अनाज नहीं था और इसी भारत के संविधान की नीतियों के अनुसार हुआ कि इसी देश में, इसी मुल्क में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, इसी मुल्क में हमने व्हाइट रेवोल्यूशन देखा, और आज की तारीख में इसी संविधान के तहत इसकी नीतियों का पालन करते हुए हम देखते हैं दैट इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 12% to 75%. This is the achievement of the Indian Constitution and its governance. उसके बाद हम देखते हैं
कि भारत के संविधान के माध्यम से ही जो दूसरी सबसे बड़ी एक उपलब्धि की गई, हमारे यहाँ जितने जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, जब फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था प्री इंडस्ट्रियल एरा में, यानी ठीक स्वतंत्रता के बाद, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज मियर 32 ईयर्स, और थर्ड स्टेज तक आते आते इसे हम 32 से लेकर के आज के समय में 75 वर्ष तक लेकर आए। उसी के तहत हमने देखा कि किस तरीके से मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया, कि ना सिर्फ नागरिकों के संविधान के प्रति सिर्फ अधिकार ही नहीं है, कुछ कर्तव्य भी हैं अपनी मातृभूमि के प्रति, जिनका उनको सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और धीरे धीरे करके लगभग हर उस मौलिक कर्तव्य को सरकार ने उसे लागू कराया। प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं कह सकते कि आप उसे इन्फोर्स करिए, पर नेशनल फ्लैग कोड लाकर, पर आर्कियोलॉजिकल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एक्ट लाकर, कि हमें अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। ऐसे तमाम अधिनियम लाकर इस सरकार ने, इस संविधान ने उन सभी कर्तव्यों को लोगों तक पहुंचाया है, और न सिर्फ उनके अधिकार, जबकि उनके साथ उनके कर्तव्यों का भी याद उन लोगों को दिलाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे देश का और हमारे संविधान में जो बुनियादी ढांचा है, जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ से आया, विच इज द लार्जेस्ट 13 जजेस बेंच, जो कि 7-6 से रेशियो दिया गया था, उसमें बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया, और उस बुनियादी ढांचे के तहत ही एसआर बोमई बनाम भारत संघ मामले में, इन द केस ऑफ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, हमने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में अपनाया। इस पर बहुत से लोगों का मत विभाजन हो सकता है कि साहब हम तो हमेशा से सेकुलर थे, जब ये शब्द नहीं जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत, और जब क्या सेकुलरिज्म को हमने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना था, तो क्या हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से या हमारे यहाँ लोगों में मनभेद था, मतभेद था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर हमारे यहाँ इतनी सारी बोली, इतनी सारी भाषाएं, इतने ज्यादा मजहब को बोलने वाले लोग, इकलौता ऐसा वाहिद मुल्क है जो एक साथ एक छत के नीचे, एक आसमान के नीचे रहते हैं, वो हिंदुस्तान है। आपको हैरानी होगी कि पूरे दुनिया में 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं। There are 56 Islamic nations, but none of the Islamic nation has all the 72 sects of Islam. सारे 72 फिर्क एक उन 56 इस्लामिक राष्ट्रों में से कहीं नहीं है, जबकि हिंदुस्तान एक लौता ऐसा वाहिद मुल्क है कि जहां पर 72 फिर्क एक साथ रहते हैं, वो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो। और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐ चांद तू किस मजहब का, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा। तो ये इस संविधान की देन है। इसके तमाम अपने दुष्परिणाम हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि साहब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज जस्ट अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, ये महज एक उधारों का झोला है, जबकि ऐसा नहीं। उस वक्त के जो हालात थे, और आप जरा दूरदृष्टता देखिए, दर्शन देखिए हमारे संविधान निर्माताओं का, उन्हें मालूम था कि किस तरीके से समाज आगे परिवर्तित करेगा, उन्हें मालूम था कि किस तरीके से हमें लोगों की जनाकांक्षाओं को पूर्ण करना होगा। तो इसीलिए विशेषकर कुछ मौलिक अधिकारों में सिर्फ बेयर एक्ट में मार्जिनल हेडिंग लिखकर छोड़ दी गई और कहा गया कि इनका निर्वचन समय के साथ अदालतें करेंगी। मिसाल के तौर पर अनुच्छेद 21, आज केवल एक लाइन अनुच्छेद 21 में अंकित है, दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके तहत न जाने कितने अधिकांश अधिकार हमें दे दिए गए हैं। वो चाहे सोने का अधिकार हो, वो चाहे अपनी मनमर्जी से विवाह करने का अधिकार हो, वो चाहे निजता का अधिकार हो, और हर ये सारे अधिकार कराना जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि हमें अपने, क्योंकि जीवन का स्तर सिर्फ और सिर्फ महज सांस लेना नहीं हो सकता। उसी तरीके से आप देखते हैं कि इस बार जो 75 वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उसकी जो थीम रखी गई है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये थीम है हमारे इस बार के संविधान की। और इसी के तहत आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी भारत की जो संविधान के तहत ही अनुच्छेद 51 के तहत की जो नीति है, टू फॉस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टू मेंटेन पीस, उसी के तहत आज हिंदुस्तान अपनी अंतरराष्ट्रीय नीति पर सबसे सफल है। वो एशियान का भी ऑब्जर्वर मेंबर है, वो Q2 में भी है, वो NSG का भी सदस्य है, वो सार्क का भी सदस्य है, क्योंकि उसने अपनी संविधान के प्रति अंतरराष्ट्रीय नीति की सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया है। ये है हमारे संविधान की उपलब्धि।
आप अगर कहें तो संविधान की उपलब्धि बताने में तो न जाने कितने घंटों बीत जाए, तो हमने बहुत कुछ कम सारांश बताया। अब जो चुनौतियां हैं वो भी हमारे आपके सामने है। जैसे कि आज के समय में अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसका कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हो पाया है। So still there is a problem that we need to eradicate the complete dissolution of the caste system from the Indian society. Still we see incidences that there is a caste conflict. फिर दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ होती है कि आज के समय में हम एक डिजिटल डिवाइड देख रहे हैं। डिजिटल डिवाइड का अर्थ है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे इंटरनेट, जैसे जैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों में अभी अपनी उतनी जागरूकता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी समस्या है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम ना हो पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसी के तहत क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डीपीएसपी के तहत हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना है, हमें उसके भी ध्यान देना है, पर उसके बावजूद हम अभी तक उस चीज को करने में, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस हिसाब से लगातार क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू आ रहा है, हम उस स्तर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे आज के दौर में लगती है, आज के वर्तमान परिदृश्य में लगती है, वो लगती है कि साहब इन सियासतदानों ने हमारे संविधान की मूल भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की है। आप सुनते होंगे फला ने ये कहा, उसी एक पंथ के लिए उधर से दूसरा जवाब आएगा। तो जो हमारे संविधान की मूल भावनाएं हैं, जो हमारे मूल संविधान में थे, वो चाहे डेमोक्रेसी हो, वो चाहे रिपब्लिक हो, चाहे सॉवरेनिटी हो, वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनके साथ छेड़छाड़ होने का प्रयास हमारे सियासतदान करते रहते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ना संविधान, ना गीता, ना कुरान, ये कोई नहीं कहता है कि एक दूसरे के साथ मतभेद रखो या वैमनस्य उत्पन्न करो। संविधान भी, एक फ्रेटर्निटी भी ये कहती है, ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना का प्रयास करती है और कहती है कि हर हिंदुस्तानी आपस में भाईचारे के साथ रहेगा। खानदार गेसू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना हिंदू से मतलब। शाने को खमदार गेसू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना हिंदू से मतलब। ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, ना हिंदी से मतलब, ना उर्दू से मतलब, ना हिंदी से मतलब, ना उर्दू से मतलब। जब हमारे संविधान को लागू हुए 50 वर्ष पूर्ण हुए थे, वर्ष 2000 में, उस वक्त एनडीए का शासन था और उस वक्त एनडीए की सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एम वेंकटचलैया, जो उस समय भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। उसमें ये बातें कही गई थी कि स्टिल वी हैव कम हाफ वे एंड वी हैव टू रीच द माइलस्टोन। सो वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो जैसा मैंने अभी आपको चुनौतियों का जिक्र किया, वो चाहे क्लास एलिमिनेशन हो, डिजिटल डिवाइड हो, वो क्लाइमेट चेंज हो, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज हैं उनका संरक्षण हो, ये आज के समय में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर जैसा कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए सर्वोच्च है और लगातार वो हमें, हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता आया है, मुझे उम्मीद है आगे भी वो ऐसा करता रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय। Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, for joining in this webinar. It was a great experience to have you all. And if anyone have any doubt, then you can ask to sir. You can open your mics and ask. And if you don't, then you can ask in chat box session. So if you have any kind of any doubt, you can ask. Yeah, any questions from anyone? Sir, I have a question. Please पूछिए, please ask. Sir, I also have a question. We will go one by one. आप शायद विदुषी पूछ रही हैं, उसके बाद we'll take on अश्विनी। हाँ विदुषी पूछिए। सर, हम लोगों के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी दे रखा है, जो कि एक मतलब हम लोगों का ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पर सर, कई जगहों पर जब हम लोगों के
कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे उन्होंने तो बहुत अच्छी सोच के साथ अभी बनाया था कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स देंगे, ये सारे राइट्स देंगे जिससे कि हम लोगों का वेलफेयर होता रहे सिटीजन का। बट सर आपने जैसे कहा कि हम लोगों के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उन्होंने ये अब हम लोगों के बीच में डिफरेंस लाना शुरू किया है कि अब हम लोग अपना जाति पर, रिलीजन पर, इस पर, उस पर कई चीजों से लड़ते रहे। पर सर सबसे उससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सर कई जगहों पर पॉलिटिशियंस भी कुछ नहीं करते, वो तो कुछ अब मतलब हम लोगों की नॉर्मल एक सोसाइटी कर लेती। अभी सर जैसे बहुत ज्यादा ही केसेस आ रहे थे 2024 में, लाइक हम लोगों का भी अगस्त में आरजी मेडिकल कॉलेज का केस हुआ, फिर सर एक अतुल सुभाष का केस हुआ। सर हम लोगों का राइट टू इक्वालिटी जो है वो सर डगमगा नहीं गया है, क्योंकि सर आई वाज लाइक कि फीमेल्स जो है वो थोड़ा होती हैं दबी हुई एज कम्पेयर टू मेल्स अर्लियर, बट आफ्टर दिस अतुल सुभाष केस आई वाज लाइक कि अगर ये कोई फीमेल इतना मेंटली हैरास कर रही है किसी मेल को, सो ये क्या गलत नहीं है। हम लोगों का लॉ जो है वो थोड़ा अपना फेवर करता है फीमेल्स को, उनको उनका सपोर्ट करता, तो सर ये क्या गलत नहीं है। अभी जैसे पहले जब चीटिंग का होता था, एडेंट्री वाज अ क्राइम, तो फीमेल्स को उतनी सजा नहीं मिलती थी जितनी मेल्स को मिलती थी। सर ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई चीट कर रहा है तो सर ये तो उस टाइम पे ये तो नहीं देखना चाहिए कि कौन चीट कर रहा है कौन नहीं चीट कर रहा है। जी देखिए विदुषी आपके राइट टू इक्वालिटी पूरी तरीके से फॉलो हो रही है। जी आई माइट बी रॉन्ग बट मेरा ये सर ओपिनियन है। देखिए मैं बिल्कुल आप चूंकि आपने सारे रीसेंट इंसिडेंट्स को कोट किया है अपने प्रश्न में और उसमें कई सारे प्रश्न आते चले गए हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको आर्टिकल 14 के बारे में एक बात बताऊंगा कि वो जो इक्वालिटी की बात करता है वो कहता है कि दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनीवन इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो उसमें टर्म आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी का यहां पर मतलब है दैट इट टॉक्स ऑफ इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। तो समानता केवल बराबर वालों में ही हो सकती है बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो ये प्रयास किया जाता है कि जो लोग अगर दबे कुचले हैं, चूंकि हमारे पास ऐसे कुछ हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंसेस हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये देखा गया कि संविधान निर्माण के दौरान कि एक वर्ग है जिसके साथ बड़ा शोषण हुआ है, या उस वक्त के समाज में लेटर वैदिक में महिलाओं की पोजीशन लगातार डिक्लाइन की गई है। तो इस वजह से निश्चित रूप से कानून बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि साहब महिलाओं को हम कुछ विशेष अधिकार देंगे। और अब आपने कहा कि इक्वालिटी नहीं होता, क्योंकि आप आर्टिकल 14 का ही जवाब आपको आर्टिकल 15 से मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 देखती हैं, अनुच्छेद 15 उपखंड 3 देखती हैं, वो स्पष्ट रूप से कहता है दैट नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेंट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो ये जो आपने बात कही कि आपको सर नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो वुमेन सेंट्रिक लॉ ज्यादा है या उनको संरक्षण दिया जाता है या उनके लिए बहुत सारा काम, तो ये भी संविधान के तहत ही है और 15 सब क्लॉज 3 में है। अब पर चूंकि फंडामेंटल राइट्स हैं, पर इन फंडामेंटल राइट के भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो महिला वाला प्रश्न था कि इनको भी किया जाता है, आप कुछ मामलों में कह सकते हैं क्योंकि 15 सब क्लॉज 3 इस बात की इजाजत देता है सरकार को। और उस सम वक्त ऐसे इंसिडेंट्स देखे जाते थे समाज में, जैसे सती प्रथा थी वो लगातार चल रही थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज थी वो लगातार चल रही थी, जिसमें एक बहुत छोटी बच्ची का विवाह अपनी उम्र से बहुत अधिकांश लोग उसके द्वारा कर दिया जाता था। तो निश्चित रूप से ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त बड़ा दुरुपयोग हुआ है इन सारे कानूनों का, पर मुझे उम्मीद है कि इस पर जरूर कानून बनेगा। और बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, आप काफी सजग हैं, तो मेरे हिसाब से ये इसका उत्तर होगा। और बाकी देखिए जैसे जैसे समाज में चुनौतियां आएंगी उस तरीके से अधिकारों को भी जोड़ा जाएगा, उस तरीके से हर व्यक्ति का संरक्षण किया जाएगा। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, एक केस अरुणेश कुमार का केस है सीआरपीसी का, मुझे शायद स्टेट ऑफ यूपी ही है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती थी कि दहेज प्रथा, जब दहेज के केसेस होते थे तो उसमें सीधा पूरे घर को बंद कर दिया जाता था। तो उस पर अरुणेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप करेंगे, तब उसके बाद आप कुछ अरेस्ट करेंगे।
दहेज के मामलों में। तो निश्चित रूप से समय समय पर ऐसी चीजें होती नहीं हो, जरूर इसके में एक कानून आएगा, उसमें विचार में होगा। और अभी देखिए बीएनएस जो लागू हुई है उसमें ये प्रयास किया गया है न्याय सबको देने का, ना कि दंडित करने का, क्योंकि उस कॉलोनियल मेंटालिटी को जो हमें शायद आईपीसी में देखने को मिलती थी, जो कि उस वक्त अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के हिसाब से बनाई थी। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ प्रावधान हमें और बेहतर शायद देखने को भविष्य में मिले, संशोधन किया जाए। ये ओके सर, थैंक यू सर। ये है। तो जहां तक आपका ये है कि महिलाओं के लिए, तो उसके लिए जरूर आप 15 सब क्लॉज 3 हमेशा याद रखिएगा, उसमें बिल्कुल स्टेट ये बना सकता है प्रोविजन, कुछ भी स्पेशल चिल्ड्रन फॉर वुमेन एंड प्रोविजन, ठीक है ना। ये हाँ अश्विनी। सर हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग। हेलो, बताओ बेटा। सर सर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाँ सर लाइक जापान, यूरोप, मतलब ये सारी कंट्रीज लाइक इकोनॉमिकली एंड मतलब वैसे भी एकदम होता है। हाँ अश्विनी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न को, देखिए उसका कारण है, आप इंडिया को बाकी देशों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में जितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, को संतुष्ट करने का प्रयास, यहाँ अंत्योदय योजना की बात होती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक हम उसको लाभ पहुंचाएंगे। इसमें बात यह है कि जापान में हाँ तो हिंदुस्तान से बहुत अलग है। पॉलिसीज जो हमारे यहाँ बनाई गई है, सर कहीं ना कहीं सर कुछ हाँ अश्विनी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न को, देखिए उसका कारण है, आप इंडिया को बाकी देशों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में जितनी बड़ी डाइवर्सिटी है, जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, को संतुष्ट करने का प्रयास, यहाँ अंत्योदय योजना की बात होती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक हम उसको लाभ पहुंचाएंगे। इसमें बात यह है कि जापान में सारे लोग जो है, एक छोटा सा देश है, कम से कम जितना बड़ा जापान है उसमें तो हिंदुस्तान से बहुत अलग है। पॉलिसीज जो हमारे यहाँ बनाई गई है, सर कहीं ना कहीं सर कुछ पॉलिसीज भी तो मतलब जैसे लाइक रिजर्वेशन सिस्टम ही है हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग हैं जिन होनी चाहिए, यहाँ पे कास्ट वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है और लाइक रिलीजन वाइज दिया जाता है चीजें। नहीं अश्विनी, एक मैं आपको बता दूं, तो सर संविधान इस बात को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है कि धर्म के नाम पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और आज तक धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये। बट सर अभी हम देखते हैं, हम लोग राइट टू इक्वालिटी, सर इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे जो भी हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो अपने जैसे जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत पूरी तरह से है, बट उनमें ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कि जैसे अगर किसी भी माइनर कम्युनिटी का है इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे अदर कम्युनिटी के लोगों को पढ़ना कंपलसरी नहीं है, मतलब उनको देखिए जिस कम्युनिटी खोलती है उसके लिए रिजर्वेशन निश्चित रूप से होता है, बट बाकी कम्युनिटी के लोग भी पढ़ सकते हैं। जैसे लखनऊ में शिया पीजी कॉलेज है, तो वहाँ पे शिया पीजी कॉलेज में हिंदू बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, पढ़ाई कर सकता है। केकेसी है, वहाँ पे किसी भी धर्म का बच्चा पढ़ सकता है, ऐसा नहीं। ये है। आपकी आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है अश्विनी, हम लोग तो मिलेंगे ही, सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हाँ सर मेरा भी क्वेश्चन था, सर मेरा भी क्वेश्चन था। मैं आता हूँ माधव आपके पास। सिमरन आपने हाँ
सिमरन है अभी? हाँ माधव। Yes, sir. हाँ It सिमरन was. प्लीज पूछिए। No, sir. I didn't have any question. It was raised by mistake. Okay. Yes, Madhav, please पूछिए। First of all, good evening, sir, और हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो हम लोगों ने जिस सोच के साथ संविधान को बनाया था, क्या हम उस सोच को आज तक पहुंच पाए हैं, वहां तक हमने उसको अचीव किया है, या फिर हम उसको क्रॉस कर चुके हैं और उसके मिसयूजेस को हम आज समाज में देख रहे हैं? नहीं, इसका एक लाइन का उत्तर है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। सारे उद्देश्य निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हो पाए हैं अनेक कारणों की वजह से। जैसा मैंने कहा, वी आर अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये आप आज जाके थोड़ा सा स्टडी करिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बना जस्टिस एम वेंकटाचलैया की अध्यक्षता में सन 2000 में, जब संविधान को 50 वर्ष हुए थे, तो उसमें भी था दैट स्टिल वी हैव अचीव्ड सम गोल्स, we have implemented socialistic measures, we are trying to create an egalitarian society, but still the kind of justices which do we have in a constitution, which means economic justice, political justice and social justice, so we are not able to perform the economic justice part with everyone. तो इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं अभी कुछ बहुत सारी चीजों को अचीव करना बाकी है। अच्छा सर, एक चीज जो जातीय जनगणना, जो भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहा है रिसेंट में, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है? दरअसल जातीय जनगणना जो है अंग्रेजों के द्वारा कराई जाती थी। अब देखिए, पाने के लिए कुछ था। कास्ट बेस्ड सेंसस की जहां तक बात है, तो सरकार के पास ऑलरेडी उसके आंकड़े हैं, बट अगर आप इस तरीके से हर चीज को जाति के आधार पर बांटेंगे, आप ये पूछेंगे कि फला जात के व्यक्ति कितने, फला जात के व्यक्ति इतने, उसको, तो उससे सोसाइटी, इट्स माय व्यू, आई मे बी रॉन्ग, बट इन माय व्यू इट सोसाइटी ब्रेक्स। ये ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इन जनरल हम जाएं तो, क्योंकि एक दूसरे की कास्ट के आप कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखिए, आज तक स्किल सेंसस की बात कोई नहीं करता है। हाँ, ये चीज कोई नहीं कर, सबको अपने अपने से टॉपिक्स चाहिए अपने चुनाव जीतने के लिए। किसमें कितनी कौशल है उसको विकसित किया जाए, उसको उस हिसाब से काम दिया जाए। इस स्किल सेंसस की बात कोई नहीं करता। आज से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2019 में आया था, मुझे जहां तक याद है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 15(6) एंड 16(6), उसको लागू हुए 6 साल हो गए हैं। उसमें कितना बेनिफिट हो पाया, नहीं हो पाया, इसकी रिव्यू की बात कोई नहीं करता। हम भी ना के समान हुआ है। हाँ, तो ये सारे इश्यूज हैं, ऑल पॉलिटिकल एंगल्स आर इन्वॉल्वड इन इट। एक चीज और सर। हाँ प्लीज। क्या नॉट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं, क्या आपको ये लगता है कि जो ऑल ओवर जितने भी लॉज हमारे देश के अंदर काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं फीमेल की साइड पे ज्यादा लाई करते हैं एज कंपेयर टू मेन? सी, it is a very good question, but जैसा मैंने कहा, Article 15 sub clause 3 that the state has the right to make special provision for women and children, so it can make, and सर वो women and children है, वहाँ men क्यों नहीं है? हाँ, men क्यों नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। Because we can say that the Constitution of India is not a gender neutral constitution per se. So जेंडर न्यूट्रल भी नहीं है, और फिर वो एक स्पेसिफिक जेंडर की तरफ भी जा रहा है। ये नहीं, तो उसका देखिए, संविधान जब बन रहा था उसके पीछे के सोच क्या है, उसके पीछे का उस वक्त के जो हालात थे, जैसा भी मैंने आपको बताया, स्त्री प्रथा, चाइल्ड मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कई सारी चीजें थी, तो उस वक्त के अनुसार उसको बनाया गया था। अब इधर हम देख रहे हैं 2018-19 के बाद से कि साहब एक ये भी पक्ष है, इसको भी सुना जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसमें समय के साथ शायद, लेकिन वो पक्ष तो है सर, उसके हजारों में 1-2 मामले आते हैं। क्योंकि मैंने सवाल ही आपसे तब पूछा, रिसेंट जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो 3 बैक टू बैक केसेस ऐसे आए थे जिन वकील साहब के पास में कर रहा था, कि मतलब उन केसेस को पढ़ के दिमाग शॉक हो गए थे कि रियलिटी में ये सब भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे तो आप देखिए, मैं थोड़ी सी इस विषय से अलग बात हो जाएगी। 2008-6-7 तक फैमिली लॉ कोर्ट्स की जो पोस्टिंग होती थी जजेस की, उसे बड़ा खराब माना जाता था। कहते साहब कहाँ है, कोई काम नहीं है। इस समय जो फैमिली कोर्ट में उसके पास घराने की फुर्सत नहीं, इतने सारे केसेस हैं। जी, एक केस था, उसके लिए अगर आप कहें तो मैं उसके बारे में बताऊं, बहुत ज्यादा शॉकिंग केस था। हम लोग यार बात करेंगे, बिकॉज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाकी भी हैं, तो आप
कहाँ पे आप अपना लॉ कहाँ से कर रहे हैं माधव? सर आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ, आपकी क्लास में पढ़ चुका हूँ कई बार। अच्छा अच्छा 4 सेमेस्टर में पीछे वाली सीट पे जो 2-3 बार आपने टोका वो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक। Any more questions? Akash, reservation is not just politics. Reservation is a tool to bring equality in society. अब ये बात बिल्कुल सही है कि आपने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये हुई आजादी के बाद से, जब आरक्षण की नीति आई, कि जो जनरल है वो ओबीसी बनना चाहता है, जो ओबीसी है वो एससी बनना चाहता है, जो एससी है वो एसटी बनना चाहता है। तो जो जहां पिछड़ने की होड़ मची हुई है वहां का समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब इसमें काम सियासत, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया? रिजर्वेशन बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि तुमको क्या बनना है? पिछड़ा बनना है। बोले एक बार हमें वोट दे दो, मां कसम इतना पिछड़ा बना देंगे कभी आगे नहीं आ पाओगे। तो वो पीछे जाते चले गए। आप देखिए, हम और आप बात करते हैं साहब शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो कास्ट सच एज शेड्यूल कास्ट। अंग्रेजों ने जब 1931 का सेंसस कराया तो उन्होंने एक जनगणना कराई। उन्होंने कहा साहब एक ऐसा ग्रुप जिसके जो एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, ये शहर के बाहर रहते हैं, इन्हें बाहर रखा गया है, ये थोड़े हाइट में कम है या इनका रंग थोड़ा दूसरा है। तो उन्होंने एक टेबल बनाई और उस टेबल को लिख दिया टैबुलेटेड कास्ट, उसमें डाल दिया। आजादी के बाद यही टैबुलेटेड कास्ट हो गई शेड्यूल कास्ट। अब एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है जिनमें कुछ जातियों के नाम हैं और वो उसमें लगा दी गई हैं। पर आरक्षण जो उद्देश्य था उसका वो बिल्कुल सही था। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इंदिरा साहनी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर कर चुका है। पर जो इसका मेथड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है और जो पॉलिटिक्स है वो खराब है। तो इसीलिए इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए ही रिजर्वेशन की पॉलिसी को लाया गया है। इट इज कंप्लीटली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। और निजी रूप से आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं आरक्षण का। दिक्कत अब बहुत लंबा वो बात हो जाएगी उसमें, क्योंकि सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे यूएसए में प्रेफरेंशियल सिस्टम चलता है। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए एक पोस्ट है और 3 लोग हैं, तो वहां पे देखा जाएगा कि अगर एक अश्वेत युवक है, एक ब्लैक है, एक महिला है, एक व्हाइट है, तो वहां पे सबसे पहले वो सीट एक अश्वेत को, एक ब्लैक को दी जाएगी, फिर महिला को दी जाएगी और फिर एक व्हाइट को दी जाएगी। तो ये प्रेफरेंशियल सिस्टम यूएसए में चलता है। इंडिया में हमने इसको पॉलिटिकली कास्ट बेस्ड कर दिया, और जिसको आप ओबीसी कहते हैं, देयर इज नथिंग एज ओबीसी, इट इज एक्चुअली एसईबीसी, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सारी चीजें हैं। तो इट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन टू योर सिंपल आंसर that it is fulfilling the aspect of Article 14, because equality means to develop an egalitarian society, a society among equals, and yes, reservation is a tool to bring equality in society. और कई सारे कमीशन बनाए हैं आकर सरकार ने। सबसे पहले बना काका कालेलकर कमीशन ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर बीपी मंडल कमीशन। तो ये तमाम चीजें हैं, कभी उसको बताएंगे, ये है। बट इसका उत्तर यही है कि बिल्कुल आरक्षण की जो नीति है पूर्णतः संवैधानिक है। यस ओके, थैंक यू। सर मुझे एक क्वेश्चन जानना था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है हमारी, वो किस तरह से आज की डेट में इन्फ्लुएंस कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन केवल ये बता देगा कि ये पॉलिटिकल, बट ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स कर रहा है, तो सर ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? निश्चित रूप से देखिए, हर जो अमेंडमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कुछ जरूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो कोर वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो कमजोर होती हैं। बट हर एक अमेंडमेंट गलत है वो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर है आर्टिकल 368 का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो दोनों सदनों से पारित होता है, तो चलता है इस तरीके से। सर हाँ अश्विनी
सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट वेलफेयर उसमें ऐड किया गया, वेलफेयर स्टेट हाँ, तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको बेनिफिट देने के लिए जी। बट सर इसको पॉलिटिकल उससे लाइक फ्रीबीज के तौर पे बांटना सर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता है। ये सारे these all are very debatable issues। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। That is very debatable। बिल्कुल वो गलत, freebies are wrong। ये है एक एग्जांपल। I think Yusra, are you there? 2013 से पहले दिल्ली वाटर बोर्ड जो था वो कहीं ना कहीं सरप्लस में था, बट इस समय सर Ashwini, can you please hold on? Ashwini, please can you hold on? Yes sir, what you are saying? I think we should take another session someday. Yeah, for sure, sir. With a longer time, I'm extreme. I hope I for your time, and I think I did my best to. We are already having not much time. I'm just आपको एक बार बोलने ही जा रही थी कि that we are not having much time. Yeah, I know. I have to also rest somewhere. So I'm extremely sorry if I'm not able to answer all the questions, but it was. I hope you all had. It was a good session for everyone. Please give your feedback, your responses, and we'll do something one more session. And hope Vivek invites me one more time. So thank you so much, sir. I'll take you leave. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir, and thank you so much, everyone. And the feedback form is given in the chat box session. From there, you can fill your forms for the certificates. Once you will fill that feedback form, then only you will receive your certificates. Everyone, I repeat it again. Firstly, fill that feedback form, then only you will get your certificates. Thank you. Thank you, sir. Oh, thank you so much.